Hi guys, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata. In this video, let's talk about savings and investment. Now, my view, it can be wrong as well, but still let's talk about what is savings. Keeping some money safe today as you can use it later. So, आपकी mother daily say Papa is giving every day 200 rupees for the ghar kharcha, like, and she is saving 50 rupees from that and putting in a box, in a gullak. You understand? And tomorrow you have said 1,000 rupees or 10,000, then you spend it somewhere. This is savings. Done हो गया? What is investment? You have put money on something like stocks, land, business or gold with the hope that it will grow and give you more in the future. Guys, अभी अगले वीडियो के अंदर I'll talk about inflation, महंगाई क्या होती है, किस दर पे बढ़ रही है, we'll talk about that. But savings is very simple कि यार ये पैसा रखा बाद में काम आएगा और इसकी रिटर्न्स फिक्स्ड होती हैं, लगभग फिक्स्ड. जैसे कि सपोज घर में पैसा रखा है, फिक्स रिटर्न कितनी है 0%. या अगर 100 रुपए रखे तो 100 रुपए ही रह जाएंगे, राइट? पोस्ट ऑफिस में डाला है, दे से 5% इंटरेस्ट सेविंग्स पे मिल रहा है, 5% ओनली. से आपने बैंक में दिया है, आपने डिपॉजिट करा है, सेविंग्स पे 3.5 to 5% के बीच में यहां पर मिल रहा है, तो फिक्स्ड है. सो ये सेविंग हो गई. से आई हैव माई सेल्फ बीन अ फाइनेंशियल डिजास्टर एज अ मरीनर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई फाइनेंशियल जर्नी इज जस्ट 6 months old. So whatever I say in this video, take it with a pinch of salt. The idea is to create that interest or fear so that you start learning. If you really are interested in learning as a seafarer, because nobody is there to guide us, join my WhatsApp channel. The link is in description box, where honest, trustworthy people hopefully will be guiding you. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. आपने बोला यार मैंने ना जो पैसे कमाए हैं, I'll buy a taxi or a truck and then I will try to earn money from here in the transport business. This is investment. आपने बोला मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, इन्वेस्टमेंट. आपने बोला यार कि मैं ना एक घर ले लेता हूं, उसको रेंट पे दे दूंगा, I'll give it on rent. So the property rate is also increasing and I am also getting money from rent. इन्वेस्टमेंट से आपने बोला यार मैं ना म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता हूं. नाउ म्यूचुअल फंड इज एज पर बिजनेस, मार्केट का रेट कैसा चल रहा है, इट इज पुटिंग मनी इन द मार्केट, सो टुमारो द रिटर्न्स कैन बी मोर और इवन लेस एज वेल. इन्वेस्टमेंट. गोल्ड, इन्वेस्टमेंट. फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स, फिक्स रिटर्न है भाई, से 5.5%, 6%, 7% फिक्स्ड है. यू बाय अ स्टॉक, से आपको लगा यार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहना, कीड़ा काट गया, तो यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, सो दिस इज इन्वेस्टमेंट. ओके. बाइंग लैंड, agriculture land, ad 3, and this is investment. Copy it guys? So this is the difference between savings and investment. Now guys, savings are safe but there is fixed return. अभी next video में we'll understand inflation कि this is safe, but what is the importance of putting money in FD and what is the importance of putting money in gold or mutual fund or stocks, we'll be discussing later in this. So both are important but there is a ratio that you need to maintain between both of them. ऐसा नहीं कि you put all your money in the savings and also not कि सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, दोनों में नुकसान हो सकता है. both are dangerous. So that is where allocation comes. कितना इसमें, कितना इसमें. I hope you understand guys. Next let's talk about asset and liability. Assets are property or objects that are owned by you to produce revenue. Say I buy a car, is it an asset? Yes यार 5-10 लाख रुपए की चीज ले ली, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू मेनी पीपल से माई ओन हाउस, माई ओन कार इज एन एसेट, मेनी पीपल से दैट, बट सैडली आई डू नॉट बिलीव दैट. मैंने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है बाय रॉबर्ट कियोसाकी एंड आई एम अ फर्म बिलीवर इन दैट, इवन दो मेनी पीपल डू नॉट अग्री. आई बिलीव एन एसेट इज वन फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग रेवेन्यू. ये डेफिनेशन है. सो सपोज यू हैव बॉट योर ओन हाउस, इफ समबडी यू हैव गिवन द अपर फ्लोर ऑन रेंट, तो कुछ पैसा आ रहा है तो भैया इट्स एन एसेट. बट अगर नहीं आ रहा है, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन दैट, इवन दो द रेट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, बट स्टिल आई वुड कॉल इट अ लाइबिलिटी पर्सनली. यू बाय अ वेरी एक्सपेंसिव कार फॉर योर सेल्फ, अब तो भैया आते ही बाहर निकले ही तो भैया उसका तो पैसा ऑलरेडी कम हो गया. मैं तो उसे लाइबिलिटी मानता हूं, बट मेनी पीपल से इट्स अगेन एन एसेट. सो अ कंफ्यूजिंग टर्म, बट मेनी पीपल से योर ओन कार इज एन एसेट. आई कॉल इट अ लाइबिलिटी बिकॉज आई एम स्पेंडिंग मनी एट दैट. बट सेम कार, if I put it in taxi and it is earning me revenue, then it becomes an investment for me. Say I buy a phone, people call it a depreciating asset. मैं नाम बता दूंगा, अभी आगे क्लियर करेंगे. I call it a big liability. A watch, it is a liability boys, it is a liability unless until a watch is one like those, वो अनंत अंबानी पहने फिलिप पटाके जो भी कंपनीज आती हैं, दोज आर वेरी एक्सक्लूसिव वॉचेज एंड दोज आर लाइक इन्वेस्टमेंट की उनकी प्राइस, दीज आर वेरी एक्सक्लूसिव वॉचेज, उनके प्राइसेस बढ़ते हैं, वो 40 करोड़ 50 करोड़ की होती हैं. लाइक पीपल इन्वेस्ट इन आर्ट, कि किसी ने बहुत महंगी कोई पेंटिंग खरीद ली और 10 साल का उसका रेट बढ़ गया, दैट इज डिफरेंट, बट अदरवाइज इट इज नॉट. म्यूचुअल फंड इज एन एसेट, आप लगा के छोड़ दीजिए एंड यू विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज ग्रोइंग एसेट.
बाइंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज एन एसेट, इट विल गिव यू रेंट, नहीं तो आप किसी को लीज पे दे सकते हो. फिक्स डिपॉजिट अगेन एन एसेट नॉट अ लाइबिलिटी, खर्चा नहीं हो रहा, यहां से कुछ पैसा मिलेगा ही. आपने लैंड लिया, लैंड का रेट इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सेल दैट एसेट. गोल्ड एसेट, इंक्रीजिंग, रेट इज इंक्रीजिंग, इन्वेस्टमेंट एसेट. कॉपीड. क्रेडिट कार्ड इज अ लाइबिलिटी यार, मेरी नजर में इज अ लाइबिलिटी. वाई इट इज अ लाइबिलिटी? बिकॉज समटाइम्स जस्ट फॉर दिस सेक ऑल्सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. सोचते भाई क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं, एंड पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी because they have a credit card. So that is why it is called a liability. Many people use this credit card very carefully, pay the money very well. 40 days ka they get a time period to pay the money as well. They are very smart, and then they get a lot of cashbacks as well. So for them it can be an asset. But 95% of the people do not use credit card in the best way. So I call it a liability. So guys, from my end, anything that is giving me revenue is an asset. Anything that is taking money from me is a लाइबिलिटी. जिस घर में मैं रह रहा हूं, अगेन मैनी पीपल से, जिस घर में आप रह रहे हो एसेट है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, यार मैं बेचूंगा तो है नहीं. आई विल सेल ओनली व्हेन आई एम गोइंग एट अ लोअर लेवल देन दैट हाउस, राइट? सो हाउ इज एन एसेट टू मी, एंड आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट. सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि अगर आपको एसेट भी लगता है, डू नॉट इन्वेस्ट टू मच मनी ऑन रियल एस्टेट इन द इनिशियल जर्नी ऑफ योर लाइफ. ये द मोमेंट यू वॉच ऑल दोज वीडियोज, slowly you will understand the concept, guys. Copied. Now let's talk about asset में appreciating asset, depreciating asset. से आपने बोला कि आपने मोबाइल ले लिया, यार कई लोग कहते हैं मैं तुझसे I call it liability from day one, but still people call it, अरे 1 लाख का फोन है, एसेट है. Some people will say अरे घर ले लिया है, एसेट है. कोई बोलेगा गाड़ी ले लिया, बढ़िया सी ले लिया, 1 करोड़ रुपए की या 40 लाख रुपए की, आई बॉट अ कार, इट्स एन एसेट. मैं बोलूंगा बाहर निकालते ही 32 लाख रुपए की कीमत लगेगी. अब वो पेट्रोल भी पिएगी, दुनिया भर का पैसा खाएगी, देन इंश्योरेंस का पैसा खाएगी, एंड अ लॉट ऑफ मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड. इट इज नॉट गिविंग एनीथिंग. सो हाउ कैन इट बी एसेट? इट इज अ लाइबिलिटी इन माय टर्म्स. तो ये लाइबिलिटी, तो पीपल कॉल इट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, आई कॉल इट अ लाइबिलिटी, बट दिस इज एन एसेट एंड इट इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट. दिस इज एन एसेट. सो गोल्ड इज एन एसेट, म्यूचुअल फंड इज एन एसेट. अब घर जिसको आपने रेंट पे दिया, वो पैसा भी दे रहा है, साथ में प्राइसिंग बढ़ रहा है, गजब एसेट. कमर्शियल प्रॉपर्टी एन एसेट. लैंड ले ली एंड यू आर सेलिंग इट, एन एसेट. So again guys, there are a lot of things that we can discuss, and we will form out ki this is an asset or not, but it will happen with time. So you can always comment ki whether you feel this is right or wrong, but this is my opinion as of now. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di.